لوگ کدھر ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی اور بھی ہے یا نہیں؟ بلیو کیا آج ہے نا، شکل دکھائیں. میں نے سنا انہوں نے کہا کہ others are in person. I am only representing respondent number 10. ہوا تھا others in person. نیچرلی وہ آپ ہی کی باتیں اڈاپٹ کریں گی نا، اور تو نہیں کریں گے. I have to disclose that before the commission I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. میں نے ان کو کمیشن آئیڈینٹیفائی تو کرا سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کرا سکتے ہیں. جی میرا نام یوسف علی ہے. ایک سیکنڈ، سابقہ الیکٹڈ جنرل سیکرٹری. ایک منٹ. کیا نام ہے؟ یوسف علی. جی آپ کیا ہیں؟ میں جی 2013 الیکشن میں جنرل سیکرٹری تھا، جو الیکشن احمد خان صاحب نے کروائے تھے. کس پارٹی کے ہو؟ ایک انصاف جی، بچپن سے. بچپن سے، اچھی بات ہے. 2013 کا جنرل صوبائی الیکشن بھی میں نے لڑا ہے تحریک انصاف سے. پی اے ایم پی اے سوابی ون سے. سوابی ون سے. ہاں جی. آپ جیتے تھے ہارے تھے؟ جی میں ہارا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا انتخاب میں حصہ لینے دیا یا نہیں دیا انہوں نے؟ میں جی آفس گیا تھا، جس کی ویڈیو بھی بنی ہے سینٹرل سیکریٹریٹ. بھئی آپ ویڈیو کو چھوڑے، آپ بتا دیں نا، زبانی بتائیے. میں گیا تھا، میں ادھر آفس میں جو لوگ تھے ہم نے ان سے معلومات چاہی. ہم سے پہلے بھی ادھر لوگ، اب بلوچستان کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے صبح سے، کہ ہمیں نامینیشن پیپر چاہیے، ہم اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. تو کسی کے پاس کوئی جو ہے معلومات نہیں تھی. تو پھر الیکشن کمیشن میں. آپ لڑنا چاہ رہے تھے الیکشن؟ ہاں جی بالکل لڑنا چاہ. آپ نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے؟ نہیں. ٹھیک، اگلا کون ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام جی محمود احمد خان ہے. محمود احمد خان. میں پی ٹی آئی میں 2006. محمود احمد خان. جی میں 2006 سے پی ٹی آئی میں دوحہ قطر میں جب تھا تو میں نے جوائن کیا تھا، اور خان صاحب کا وہاں میں نے فنکشن بھی کروایا تھا رمادہ ہوٹل میں. اور 2010 میں میں ریٹائر ہو کے کیم ڈاؤن ٹو اسلام آباد اینڈ اسٹارٹڈ ورکنگ ود پی ٹی آئی اسلام آباد آفس. ایز واٹ؟ میرا تھوڑا سا آپ کیا کرتے تھے ان کے دفتر میں؟ کیا کام کرتے تھے؟ کام کیا کرتے تھے آپ؟ I joined them as an ordinary member. Then I was given the two tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. Coordinator. تو آپ اب کس پارٹی میں ہیں؟ اب کس پارٹی میں ہیں آپ؟ پی ٹی آئی میں. میں نے زندگی میں ایک ہی پارٹی جوائن کی ہے، اسی میں رہنا ہے، اسی میں رہوں گا. That is پی ٹی آئی اصل. آپ کو الیکشن لڑنے دیا یا نہیں دیا؟ انٹرنل الیکشن کا بالکل میرا ارادہ تھا، اور بات یہ تھی کہ میں کس بات کا الیکشن لڑوں. مجھے کئی پوزیشنوں کا نہیں پتا تھا، مجھے پروسیس کا نہیں پتا تھا، مجھے لسٹ کا نہیں پتا تھا. میں نے الیکشن، میرا پروگرام تھا میں اسلام آباد سے ہوں تو میں فوکس اسلام آباد پہ کروں گا. لیکن دیر واز نو انفارمیشن. نامینیشن پیپر دیا آپ کو یا نہیں دیا؟ نامینیشن پیپر دیا یا نہیں دیا؟ نہیں سر، نہیں. انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کیا کہ کون کون سی پوزیشنز کا الیکشن ہونا ہے. نامینیشن تو اس کے بعد آتا نا، پہلے یہ بتاتے کہ یہ الیکشن پوزیشن ہیں. ان کو آپ سے کیا پرابلم ہے؟ مجھے پرابلم ہے. ان کو کیا پرابلم ہے آپ سے کہ آپ کو نہیں دیا؟ یہ تو ان سے پوچھیں. مجھے شاید، میں ڈیموکریٹک، آئی بلیو ان ڈیموکریسی. آئی بلیو کہ پارٹی کے اندر ڈیموکریٹک رائٹ ہونا چاہیے، ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، پارٹی میں فائنینسز کلیئر اور اس کا کلیئر آڈٹ ہونا چاہیے. یہ کلٹ میں کنورٹ نہ کرو. We want democracy in the country, and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ٹھیک ہے. وہ آپ بی کو بتائیں، اپنا تعارف کرائیے. یہ کون سی ریسپونڈنٹ؟ نمبر 11. نام کیا آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورین فاروق خان. آپ کس پارٹی میں ہیں؟ جی میں پی ٹی آئی میں نے 99 میں جوائن کی تھی اور بہت سارے عہدوں پہ رہی ہوں. مطلب کراچی. آپ کس عہدے پہ تھیں یا عہدہ نہیں تھا؟ نہیں، میں بھی آپ کو سارے عہدے بتا دیتی ہوں. مطلب 99 میں ایز اے وومن ونگ کی پریزیڈنٹ میں کراچی کی تھی. اس کے بعد ایک ذرا آہستہ. ویمن ونگ
प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। देन आफ्टरवर्ड एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वॉज डाइड 2 years बैक। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान। तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ स्टाफ ऑफ मिस्टर ऑफिसर। नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, ठीक। मतलब ही वॉज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अताब बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे दीर अपर दीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं। तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले वो तो जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज के G8 में कोई घर है या नो कोई? नो इट्स अ बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग? नो, अपनी बिल्डिंग बनाई है पीटीआई ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है। ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नईमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पीटीआई, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलें और कौन साहब में? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक। जी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग डॉक्टर। ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? आप मैं कब से? 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी। मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी थे? छाव में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं?
अब अपने लोकल एरिया में हमने वार्ड यानी अभी जो इलेक्शन हुए हैं इनके, आप अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? हाँ? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टैक्सला और वहां से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी ज्यादा, शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टैक्सला से हो? टैक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए हैं जिसमें लोग पीटीआई में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक, और कौन रह गए? सब हो गए? जी, मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से चक नंबर 312 गांव से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी 81 से टोबा टेक सिंह से। हाँ? यूसी 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का सर। कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग वो ऑफिसर? बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में। प्रिजाइडिंग। मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन? मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में। ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर। मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था। इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके।